Madam Speaker, this bill comes to replace an ordinance which was promulgated by the President of India on 23rd November. And now we are discussing this bill within Parliament. But we must keep in mind that if the Parliament was convened normally, as it is by the third week of November, then there would have not been an ordinance. This bill would have been discussed within the Parliament. And it is quite ironical that for a political party that talks about simultaneous elections in Assembly, Lok Sabha, talking about improving the efficiency of this government, the recent 2 months were gross examples of gross inefficiency. Only 2 states went to elections, and while they were supposed to have been convened at the same time, the dates were not overlapping and dates were postponed. Important bills which have been introduced in this Parliament in this session and then passed in a hurry, whether the GST compensation, whether this ordinance, whether the medical reform of the Medical Council of India. Now this is all the process been hurried, and the deliberation that should normally have occurred is not taking place. So it's quite ironical that while you talk of simultaneous Assembly Lok Sabha elections, when 2 states had to go, you didn't do it. And if you remember earlier this year when elections were in West Bengal and UP, we had Parliament going on then. So we could have convened Parliament to discuss and deliberate at length. Madam Speaker, just on this larger point, because many people look towards us and look towards our constituents, look towards us to discuss important matters. Parliament now only sits on an average for 70 to 75 days, Madam, as you would know. And when in the first session, Parliament used to sit for 150, 180 days. No. It will cross 100, ma'am. It was 120, 130 days. So, Madam, while the Constitution has only a provision that no 2 sittings of the session can be convened, should be convened if there is a distance of more than 6 months. I hope that through you, Madam, we can bring about an amendment where we put in minimum number of sittings, minimum number of days, and a regular schedule, so that we know that Parliament will sit, and come elections, come any other things, Parliament would schedule, because we are accountable to the people of India. Madam, this bill deals largely with the Insolvency and Bankruptcy Code. The Insolvency and Bankruptcy Code largely deals with the crisis of NPAs, non-performing assets. Now, what is the extent of this crisis? The extent is that total exposure of banks to bad loans is around 8 lakh crore rupees, roughly translating to 5% of our GDP. That is more than what we need. That is more than the budget that we have for our education, more than the budget that we have for any other important social welfare sector. There are around 300 cases in the National Company Law Tribunal. And, Madam, if I were to read the statistics, unfortunately there is a misconception amongst the ruling party. They think that debt recovery and recovery of bad loans has only started post 2014, after the Prime Minister has taken over. Let me remind you that NPAs, they have always been acts instituted by the Government of India to recover bad loans. There were multiple acts. We used to have Lok Adalats, we used to have debt recovery tribunals, and they were functioning for many years. And what the Insolvency and Bankruptcy Code has done, which is to implement the recommendation of the Bankruptcy Law Reforms Committee and codify these existing laws. तो आप लोग जो बोलते हैं कि पहले क्यों संज्ञान में नहीं लिया, पहले क्यों संज्ञान में नहीं लिया, वो आपका वहम है. पहले संज्ञान में था, विभिन्न प्रकार की कार्यवाही थे, विभिन्न प्रकार के नियम थे. और मैं साथ ही साथ कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स भी मैं पढ़ना चाहूंगा. वर्ल्ड बैंक डेटा के अनुसार एक टेबल उन्होंने बनाया है कि बैंक नॉन परफॉर्मिंग लोन्स टू टोटल ग्रॉस लोन्स परसेंटेज, मतलब बैंक ने जितने भी लोन दिए हैं, भारत में जितने भी बैंक्स हैं, उन्होंने जितने भी लोन दिए हैं 1 साल में, उसमें से कितने लोन नॉन परफॉर्मिंग बन चुके हैं.
तो 2011 में भारत का भी मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, भारत में 2011 में परसेंटेज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स टू टोटल ग्रॉस लोन्स वाज 2.7. In 2012 it was 3.4. In 2013 it was 4.0. यहां तक तो हमारा खत्म, यूपीए का खत्म. अब 2.7 से 4 से. अब मैं आपकी आंकड़े में पढ़ता हूं, आपके सरकार के समय के अनुसार आंकड़े क्या हैं. 4. आप पढ़ लीजिए, आप सुन लीजिए. 2.1. ये बिल भी किस लिए लाए हैं वो भी मैं बोलूंगा बाद में, किसको मदद करने के लिए लाए हैं. 2014 में 4.3. out of total gross loans, the percentage of non-performing loans 4.3. 2015 5.9. and now comes 2016 9.2. So while the issue of NPA was of concern and it was been addressed through various laws during UPA, the finance ministry used to convene meetings of the directors of public sector banks and used to tell them in meetings in 2012-2013 कि आप ध्यान दीजिए कि ये कौन से वो कंपनियां हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लेके वापस नहीं दिया है. तो ये संज्ञान में थे. बैंक डायरेक्टर्स की मीटिंग हमारी सरकार के वित्त मंत्रालय बुलाते थे, लेकिन आपके दौरान क्योंकि आपकी आंख भटक गई, आपके दौरान ये एनपीए का जो मसला है, it became from a concern, it became a crisis of epic proportions under your government. So this you must take into account, that in whose tenure has it become worsened. In 2011 it was 2%, 2013 around 4%, by now it is around 9.2 and growing even further. Therefore, while I appreciate that there is an insolvency and bankruptcy code, it allows us a certain sense of predictability, it allows a certain sense of stability and gives a legislative clarity to promoters. But how does the government intend to measure the success of IBC? आप जो ये कानून लाए हैं, ये कानून सफल हुआ है कि नहीं सफल हुआ है, आप इसका आकलन कैसे करेंगे? अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर आपका आकलन है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, बैड डेट है, आप उस बैड डेट को रिकवर करेंगे, जो क्रेडिटर्स हैं जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनको इस आईबीसी के द्वारा पैसा मिलेगा, तो उसका एक केस का आपको उदाहरण देता हूं जो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एनसीएलटी में निकला, जिसमें लेंडर को, क्रेडिटर को 94% हेयरकट लेना पड़ा. मतलब जो क्रेडिटर था उस केस में जिस पे जजमेंट आ चुका है, क्रेडिटर ने लोन दिया था रुपीज 972 करोड़, 972 करोड़ का लोन था, और जिसमें से रिकवरी ओनली रुपीज 54 करोड़. तो मतलब मैंने अराउंड, जो एक क्रेडिटर ने अगर 100 रुपए दिए हैं, उस 100 रुपए से उसको सिर्फ 6 रुपए वापस मिले हैं. तो अगर इस प्रकार की जजमेंट्स आते जाएंगे कि क्रेडिटर ने जितना पैसा दिया है वो इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के द्वारा उसको अपना पैसा नहीं मिलेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अपना पैसा नहीं मिलेगा, तो जो आज क्रेडिट सप्लाई की जो बात है, क्रेडिट आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडस्ट्री को क्रेडिट नहीं दे रही, वो तो समस्या रहेगी. क्योंकि बैंक ने अपने बैलेंस शीट में ये प्रोविजन बना रखा है कि ये जो बैड डेट है, नॉन परफॉर्मिंग लोन है, आईबीसी के दौरान इससे मुझे काफी रिकवरी हो जाएगी. इस रिकवरी के दौरान, इस रिकवरी के बाद में और कंपनियों को मैं लोन दे पाऊंगा, वो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करेंगी और नौकरियां बनेंगी. पर वो तो नहीं हो रहा. एनपीए तो बढ़ते जा रहे हैं. Now try to continue. Madam, only 2 minutes. Okay. एनपीए तो आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये फायदा कितना कर रहा है. क्रिसिल की रिपोर्ट आती है कि जो 50 टॉप डिफॉल्टर्स हैं, 50 टॉप डिफॉल्टर्स ने अगर इफ दे ओ रुपीज 4 लाख करोड़, आउट ऑफ 4 लाख करोड़ इट इज रियलिस्टिक कि ओनली 1.6 करोड़ विल कम बैक. तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा आपका रिकवरी होने नहीं वाला है. तो क्रेडिट ऑफ टेक, क्रेडिट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉब्लम रहेगी. और मैं दोबारा आपको कहता हूं कि आज रिकवरी रेट क्या है. आप लोग वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ही लिखा है कि विभिन्न देश में
रिकवरी रेट कितना है होता है ना, द रिकवरी ऑन अ $1, हाउ मेनी सेंट्स डज अ कंट्री इज एबल टू रिकवर? तो इंडिया का रिकवरी रेट है 26, चाइना का रिकवरी रेट है 36, मलेशिया का रिकवरी रेट ऑन $1 इज 81 सेंट्स, थाईलैंड का रिकवरी रेट है 67.7 सेंट्स। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के द्वारा आप जो रिकवरी का ये सोच है कि रिकवर होगा, ये तो हो नहीं रहा है। और इस पे आप अपने पीठ थपथपाने से मैं बोलता हूं कि आप इस बिल को दोबारा देखिए कि इससे क्या रिकवरी रेट बढ़ेगा या इससे कम होगा। आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लिंक्ड है क्रेडिट से, क्रेडिट लिंक्ड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिंक्ड है जॉब से, और जॉब्स का आपको ही आपका 2014 का मैं चुनावी मुद्दा याद दिला दूं, प्रतिवर्ष 2 करोड़, और आपकी असलियत यह है कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ क्या, आप 1.5 लाख जॉब्स आप दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज लगता है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो आप बात करते हैं, कभी आप ईज ऑफ फार्मिंग की भी तो बात करिए। ये जो बिल आप लाए हैं आईबीसी, बड़े बैंक्स, या वो टॉप 12 डर्टी डजन, एज जो आरबीआई बोलती है डर्टी डजन को हेल्प करने के लिए है, पर आप ईज ऑफ फार्मिंग की तो बात करिए। यूपीए के टाइम में 80,000 करोड़ का यूपीए का लोन वेवर था, लेकिन दुख लगता है कि जब किसान आज पिट रहा है, आपके केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से बात आती है कि केंद्र सरकार फार्म लोन वेवर नहीं करेगा। हां, लेकिन हैकट के द्वारा रिलीफ बड़े कंपनियों को तो मिलेगी, लेकिन किसानों को रिलीफ नहीं मिलती। तो मुझे दुख है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सिर्फ दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े कंपनियों पर ध्यान देता है, ये केंद्र सरकार आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, लेकिन ईज ऑफ फार्मिंग की बात नहीं करती। Yes. आज इकोनॉमी की रियल असली पिक्चर क्या है? आपके ही राज्यसभा के सांसद बोलते हैं कि क्रिसिल और कि फिच और मूडी जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, आपके ही राज्यसभा सांसद, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत वरिष्ठ है, उन्होंने कहा है कि आज इन रेटिंग एजेंसीज को भारत सरकार डरा रही है, धमका रही है, आर्म ट्विस्ट कर रही है, और रेटिंग्स ये फिक्स हो रहे हैं। उन्हीं का आर्टिकल आया है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन पे दबाव डाला जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि जीडीपी नंबर्स जो असली है उससे नहीं, उसको थोड़ा और एब्रश करके, फोटोशॉप करके उसको और अच्छा दिखाना चाहिए। देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारी भारत की रेटिंग एजेंसीज में हमारी भारत का जो हमारा वजूद है वो ऊंचा हो। हम भी चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी और जीडीपी असली हो, लेकिन हम अपने केंद्र सरकार से झूठ नहीं सुनना चाहते। क्या जीडीपी, क्या असली क्या है? 2014 के पहले जो फॉर्मूला था उसके अनुसार, मैडम जस्ट कंक्लूडिंग, लास्ट पॉइंट, जीडीपी क्या पहले क्या फॉर्मूला था, आज आप बताइए। आज आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बोलते थे कि 2014 में ग्लोबल हेडविंड्स है, ग्लोबल हेडविंड्स के द्वारा भारत की इकोनॉमी जिस प्रकार से आगे जानी चाहिए नहीं जा रही। लेकिन आज अगर आपने देखा होगा, रुचि शर्मा का आर्टिकल आया था इस साल के शुरुआत में, वहां पे उन्होंने कहा कि जहां पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी आज 2007 और 8 के ग्लोबल रिसेशन के क्राइसिस से रिकवर हो गई है, वहीं भारत की इकोनॉमी आज वापस पीछे जा रही है, 5.7, 6.3 वहां पे अटके हैं। अगर इस पे आपने 2014 का पहला फॉर्मूला लगा दिया तो ये 6.3 आपका 4 हो सकता है, 5.6 आपका 3 हो सकता है। हम आपसे चाहते हैं कि हम आपकी असलियत दिखाएं, airbrush of, don't Photoshop figures, don't airbrush figures, don't lie to the people of India. They deserve transparency. Yes, thank you. Madam, last में I'm concluding that please relook at this bill. आज हम ये बहुत हैरान हैं कि ये बिल आया था, ये ऑर्डिनेंस आया था 22 नवंबर को, और 9 नवंबर को इस ऑर्डिनेंस में जो बातें की गई हैं, 9 नवंबर को एक पब्लिक सभा में एक बड़ी स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि इस प्रकार का ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। इस प्रकार के ऑर्डिनेंस जो डूबियस प्रमोटर्स को सपोर्ट करते हैं उनको हटाने के लिए इस प्रकार का ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। तो मैं तो काफी हैरान हूं कि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट 9 नवंबर को कहता है एक पब्लिक फंक्शन में, उसके इच्छा अनुसार वैसा एक बिल आ जाता है, एक ऑर्डिनेंस आ जाता है 22 नवंबर को। तो मैम तो चाहते हैं कि इस पर आप ध्यान करिए, ये क्या ये नेक्सस तो नहीं है जिस डील के लिए ये आईबीसी आ रहा है, कहीं उसको तो आप मुझे फायदा तो नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जो डील, जो भूषण स्टील का डील है, उसको आप पार्लियामेंट में लाके उसका संज्ञान में लाइए, ताकि आप दिखा पाए कि ओके, ऑनरेबल मिनिस्टर।